अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर. Our lecture will include the introduction of the chapter, typical properties of gases that will include diffusion, effusion and pressure. Starting from chapter's introduction, in this chapter we will study about the physical states of matter. What is matter? Anything that has mass and occupies space is called as matter. And from your very beginner classes, you have been studying about the three physical states of matter, which is gas, liquid, and solid. Recently, a new state has been discovered, which is plasma. But this is not yet been included in your textbook. So we will study about these three physical states of matter in detail in this chapter. So starting from the basic difference between these three states, which are solid state, liquid state and gaseous state. In case of solids, the solid possess definite shape and have definite volume. उनका एक specific shape और specific volume होता है और ये जिस भी कंटेनर में आप डालेंगे उसकी shape नहीं रखेगा, ये अपनी shape को maintain करेंगे. The particles are arranged in a specific ordered pattern and the particles are very small and they are fixed at their positions. हर पार्टिकल अपनी ही जगह पर रहता है and they have very strong intermolecular forces present between them. And because of that reason, the solids are very dense. The particles are nearly incompressible. As the solids are not fluid, it means they do not show the property of diffusion or they show the property of diffusion very slow. In case of liquids, the particles they do not have definite shape. You can clearly see that they have a specific, they do not have a specific shape. हर एक पार्टिकल जिस तरह से हम लोग जिस कंटेनर में इसको ऐड करेंगे ये उस तरह से अपनी शेप को अज्यूम कर लेंगे because the particles are randomly moving. They have intermediate density as compared to the solid state and they are slightly compressible क्योंकि इनकी intermolecular forces उनकी बनिस्बत ज़रा कम है and as they are fluid they show the property of diffusion. In case of gases, they do not have any definite shape, any definite volume. अगर आप किसी भी गैस को किसी भी जगह रिलीज करेंगे ये जितनी भी स्पेस वहां अवेलेबल है पार्टिकल्स उस पूरे एरिया को कवर अप करेंगे. They have very weak intermolecular forces इसलिए पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं. But the gases possess very good power of compressibility. We can compress them and even कुछ gases के पास ये power भी होती है that we can convert them into liquid state. So the basic difference in between solid, liquid and gas is that the solid they have strong intermolecular forces. They have a relatively weak intermolecular forces or we can say intermediate intermolecular forces. And gases they have almost negligible intermolecular forces. ना होने के बराबर इनमें intermolecular forces present हैं. And because of this reason इनकी intermolecular force कम होने की वजह से gases they do not possess any definite shape or volume. Definite shape is also missing and definite volume is also missing. But in case of liquid we have they assume the shape of the container. So it means they do not have definite shape. In case of solids, we have definite shape and definite volume. Both is present in case of solids. और अगर हम इनकी compressibility power को देखें, solids they are not compressible. Liquids they are almost intermediately compressible. But gases they show very good power of compressibility.
In case of solids, the solids are very highly dense, क्योंकि उनके particles एक दूसरे के बहुत करीब हैं, इनकी density ज़्यादा है. Liquids are intermediately dense, and in case of gases, there is no density at all. क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर हैं, तो इसमें हम डेंसिटी की प्रॉपर्टी को उतना अच्छा डिस्कस नहीं करते जैसा का बाकी में. तो आज हम लोग गैसेस की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और उनमें से आज हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन. बट बिफोर गोइंग टुवर्ड दैट, लेट्स सी द बुक पेज, द पेज नंबर 76. Here we have the matter exists in three physical states: gas, liquid and solid. Here first they are discussing about the physical some properties of gases. Here are the properties of liquids. That the liquids, they show the property of evaporation, they exert vapor pressure. We will discuss each of these terms in our later topics. The solid state, they have definite volume, definite shape, they show good, they are rigid, denser and many more. तो हम इनकी हर एक प्रॉपर्टी को डिफरेंटली डिटेल में हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. तो आज हमारी पहली प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन फॉर गैसेस. आप लोगों ने अपने बायोलॉजी के चैप्टर में डिफ्यूजन की डेफिनेशन पढ़ी है, दैट द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और द मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. बट दिस डेफिनेशन फिट्स परफेक्टली फॉर लिक्विड स्टेट्स. लिक्विड के लिए हम ये डेफिनेशन हम राइट कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ गैसेस वी कांट राइट दिस डेफिनेशन. देयर इज सम अमेंडमेंट, देयर इज सम मोर चेंजेस इन इट, और हम इसके लिए जो परफेक्ट वर्ड यूज करते हैं, इट इज द होमोजेनस मिक्सचर फॉर्मेशन. यानी कि लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस. अगर आप एक रूम के कॉर्नर में रूम फ्रेशनर जो है वो चलाते हैं, या रूम स्प्रे, कोई भी एयर फ्रेशनर अगर आप जो है वो स्टार्ट करते हैं, तो आप थोड़ी देर बाद उसकी जो स्मेल है वो दूसरे कॉर्नर पे महसूस कर सकते हैं. दिस इज बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन. The fragrance particles, they randomly collide and move with the air particles, and this movement continues until we get a homogeneous mixture. So, in case of diffusion, we form a homogeneous mixture by the random motion and collision. यानी कि जो मॉलिक्यूल्स जिन लोगों ने मूव करना है फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट, वो स्पॉन्टेनियसली होंगे. यानी कि ये नहीं कि कोई स्पेसिफिक साइज या स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ही आपस में करेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं. जिस भी मॉलिक्यूल ने डिफ्यूजन करनी है, इट विल बी स्पॉन्टेनियसली मिक्सिंग, यानी कि आपस में स्पॉन्टेनियसली ही वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स करेंगे बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन एंड कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल अ होमोजेनियस मिक्सचर इज फॉर्म्ड. डिफ्यूजन की स्पीड ये किस बात पे डिपेंड करेगी कि गैस का वेट कितना है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है. फॉर एग्जाम्पल, द लाइटर गैस जिनका वेट कम है, जिनका मॉलिक्यूलर मास कम है, वो जल्दी से डिफ्यूज करेंगी क्योंकि उनके पास डिफ्यूजन पावर ज़्यादा होगी, जबकि हैवियर वंस विल हैव लेस पावर टू डिफ्यूज. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन विच हैव द मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2, it diffuse 4 times faster as compared to oxygen which has the molecular mass of 32. Let's take another example. यहाँ पर हम एक सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एक गैस रिलीज करेगा. एक तरफ हमारे पास HCl है, this one is HCl, this one is अमोनिया. इनमें से कुछ गैसेस रिलीज होंगी और वो गैसेस जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो वो एक जगह पर एक रिंग बनाती हैं, डेंस वाइट रिंग. अब ये जो गैसेस हैं ये यहाँ पर ट्रेवल की. वन ऑफ दीज इज अमोनिया गैस एंड द अदर वन इज HCl और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. तो क्या आप बता सकते हैं, आफ्टर वॉचिंग दिस प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, कैन यू टेल विच गैस ट्रेवल्ड फास्टर, अमोनिया गैस और HCl गैस? तो हम लोग बड़ा क्लियरली देख सकते हैं इन आवर एक्सपेरिमेंट दैट अमोनिया गैस ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है एज कंपेयर टू HCl गैस. HCl का गैस का जो डिस्टेंस है वो कम है. इट मीन्स अमोनिया ट्रेवल्ड फास्टर एज कंपेयर टू HCl गैस. और अगर हम इनका मॉलिक्यूलर वेट भी देखें, सो इन केस ऑफ अमोनिया वी हैव द फॉर्मूला NH3. 14 for nitrogen, 3 for hydrogen, we have total of 17 molecular mass. But in case of HCl, 1 for hydrogen, 35.5 for chlorine, the molecular mass is 36.5.
तो अगर आप देखें तो अमोनिया का चूंकि मॉलिक्यूलर मास कम है तो ये जल्दी से ट्रेवल करती है एज कंपेयर टू द HCl विच हैव हाई मॉलिक्यूलर मास. So this experiment justify हमारी previous statement diffusion की that lighter gases will diffuse faster. We have the next property which is effusion. Effusion क्या है कि अगर किसी भी सिलेंडर में जहाँ पर कोई भी गैस प्रेजेंट है अगर उसमें कोई होल हो जाए कोई रप्चर हो जाए तो जो पार्टिकल्स उस होल्स में से पास करेंगे तो ये जो उसकी पासिंग प्रॉपर्टी है फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरिया टू अ लो प्रेशर एरिया वी कॉल दिस effusion. कि किसी भी छोटे से होल में से कि गैस पार्टिकल्स का मूव करना फ्रॉम देयर हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया वी कॉल दिस effusion. सो इट इज़ द escaping ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल्स escape करेंगे किसी भी छोटे से होल में से ऐसी जगह पर जहाँ प्रेशर कम है यानी जैसे कि कोई टायर है अब टायर में जो गैस पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी हाई प्रेशर्ड यहाँ पर उनका प्रेशर ज़्यादा है जैसे ही ये जो है वो टायर रप्चर करेगा या पंक्चर हो जाएगा तो वाटर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इट विल मूव आउट ऑफ दैट होल इनटू द एरिया ऑफ लेस प्रेशर. ये जो प्रॉपर्टी है वी कॉल दिस effusion. और ये भी मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है. लाइटर गैसेस विल अफ्यूज फास्टर एज कंपेयर टू द हेवियर वंस. नेक्स्ट वी हैव प्रेशर. गैस के मॉलिक्यूल्स चूंकि रेंडमली मूव करते रहते हैं दे एक्सर्ट प्रेशर. व्हाट इज प्रेशर? अब ये हमारे पास एक सिलेंडर है अ गैस सिलेंडर क्लोज्ड गैस सिलेंडर. अब इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स है. द गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद दिस वॉल. So on colliding they cause a certain impact. इसके ऊपर कोलाइड करने पर एक स्पेसिफिक फोर्स अप्लाई करते हैं. अब ये जो फोर्स इसके ऊपर लगी एक स्पेसिफिक एरिया पे वी कॉल दिस प्रेशर. इसी तरह मॉलिक्यूल्स आपस में भी एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं. जब आपस में भी कोलाइड करेंगे तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे और एक स्पेसिफिक एरिया पे फोर्स लगेगी. हम इसे कहेंगे प्रेशर. सो प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड ऑन एन एरिया. We know that the force is measured in Newton and the area is measured in meter square. So we get the unit which is Newton per meter square, which is also called as pascals. So 1 pascal means 1 Newton meter per square. So the pressure is defined as the force exerted per unit surface area. किसी भी फोर्स कोई भी फोर्स जो किसी एरिया के ऊपर लगाई गई है हम उसे प्रेशर कहेंगे. The SI unit of pressure is Newton per meter square. लेकिन इस Newton per meter square को हम पास्कल भी कहते हैं. प्रेशर मेजर करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं. अगर आप प्रेशर किसी भी नॉर्मल मेजरमेंट का फाइंड करना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी गैस पार्टिकल्स का जो कि आप लैब में मेजरमेंट करे हैं या वैसे भी किसी भी जगह पर वी यूज द इंस्ट्रूमेंट विच इज मैनोमीटर. बट इन केस अगर आप जस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना चाहते हैं हवा जो मौजूद है हवा में भी गैसेस हैं और हमने कहा गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वी कॉल्ड इट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और अगर हम ये मेजर करना चाह रहे हैं कि जो हवा है जो एयर है वो किसी भी बॉडी पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है तो उसके लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वी कॉल दैट बैरोमीटर. लेकिन अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम किसी भी चीज़ की कोई मेजरमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वी कॉल दिस मैनोमीटर. यहाँ पर उन्होंने बेसिक डिफरेंस दिया है दैट बैरोमीटर इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मैनोमीटर इज यूज टू मेजर प्रेशर इन द लेबोरेटरीज. बट इट इज़ नॉट जस्ट मेंट फॉर लेबोरेटरीज. मैनोमीटर जस्ट हम लैब के अलावा भी कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन जो स्पेसिफिक टर्म आपको मालूम होनी चाहिए वो ये कि बैरोमीटर हम खास तौर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं और मैनोमीटर हम कोई भी प्रेशर जो है वो फाइंड करने के लिए कर सकते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा. कल इंशाल्लाह हम हमारे लेक्चर में पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है. तो आज के लिए हमने पढ़ा about the basic introduction of the chapter. Here you will study this topic for comparison purpose. Solid, liquid and gas की typical properties का comparison आप अच्छे से याद करेंगे. Then we have diffusion, its definition and example for short question. Effusion, definition and example for short question. Pressure, the definition and example for short question. And here we have an important MCQ too.
तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।